آداب ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں سید احمد جیلانی۔ ناظرین، قومی اردو کونسل اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے نوڈل ایجنسی کے طور پر سرگرم ہے۔ گزشتہ ہفتے ریاست بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں حضرت دیوان شاہ ارزانی رحمۃ اللہ علیہ کا 415واں سالانہ عرس منعقد ہوا۔ اس پروگرام کے افتتاحی اجلاس میں قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور تصوف اور صوفیاء کرام کی تعلیم کو وقت کی اہم ضرورت بتایا۔ اس پروگرام میں تصوف اور خانقاہوں سے جڑی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریبات عرس آفتاب شریعت حضرت دیوان شاہ ارزانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر پٹنہ میں واقع مرکزی ہال خانقاہ حضرت دیوان شاہ ارزانی میں صوفیاء بہار اور ان کی تعلیمات کے موضوع پر 2 روزہ سیمینار و تصوف ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے شرکت کی۔ پروفیسر شیخ عقیل احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صوفیزم پر جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی اردو کونسل کی جانب سے جلد ہی اس ضمن میں کوئی خاص قدم اٹھایا جائے گا۔ آفتاب شریعت حضرت دیوان شاہ ارزانی کے یوم وصال کے موقع پہ ایک پروگرام ہو رہا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے، ہم نے کوشش کی ہے اور ایک ٹیم ہم نے بنائی ہے، ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی کے تحت پورے ہندوستان میں تصوف اور صوفیوں کے متعلق پوری تفصیلی ایک کتاب لکھوانے جا رہے ہیں، اینتھروپولوجی ٹائپ کی، جس سے ساری دنیا کے اندر یہ بات پھیلے گی کہ کس طرح سے شروع سے اب تک صوفیاء کرام نے پورے ہندوستان کے اندر قومی یکجہتی اور آپس میں ایک دوسرے قوموں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ترغیب دی ہے، اور کس طرح سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر ان کی جو روح ہے، ان کے اندر جو نور ہے وہ خدا کا ہی نور ہے، خدا کا ہی جلوہ ان کے اندر نمایاں ہے۔ اس لیے اس دنیا کے ہر طرح کے لوگ، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ خدا کے ہی بندے ہیں، اور سبھی لوگوں سے ہم آپس میں ہمیں محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اگر صوفیوں کے تعلیمات کو ہم عام کرتے ہیں پورے دنیا کے اندر، تو پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر امن پیدا ہوگا اور لوگ صحیح راستے پہ چلنے لگیں گے۔ یہ درگاہ ہندوستان کی قدیم درگاہوں میں سے ایک ہے جو باہمی اتحاد کا بڑا مرکز ہے، جہاں ہر قوم کے لوگ ایک ساتھ صاحب آستانہ مزار پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ بر صغیر کے ایک معروف بزرگ آفتاب شریعت حضرت دیوان شاہ ارزانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس یعنی 415 سالانہ عرس منایا جا رہا ہے۔ 5 روز کی تقریب ہوتی ہے۔ اس 5 روز میں قرآن خوانی، محفل میلاد، مجلس سماع، سیمینار، قل و فاتحہ کے علاوہ ہر سال ایک ماہر تصوف کو آفتاب شریعت تصوف ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ اس سال کے سیمینار کا موضوع جو ہے وہ بہار کے صوفیاء اور ان کی تعلیمات ہے۔ یہ موضوع اس لیے رکھا گیا ہے، اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہار کے صوفیوں پر بہت کم کام ہوا ہے، لوگ باہر کے صوفی کو تو جانتے ہیں لیکن بہار کے صوفی کو نہیں جانتے ہیں۔ مخدوم جہاں شیخ شریف الدین احمد یحییٰ منیری ان بزرگوں میں ہیں جہاں حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر، یا جس مقام پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یا جہاں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، لیکن بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں اس حیثیت سے کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ اسی طرح آفتاب شریعت حضرت دیوان شاہ ارزانی رحمۃ اللہ علیہ
पश्तो के साहिब दीवान शायर हैं। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अहले सलासिल से वाबस्ता हजरात के साथ दानिश्वर, सूफी और खानकाही निज़ाम से वाबस्ता अशखास ने शिरकत की। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। यूं चश्मे शौक देख ही लेती है कुछ ना कुछ, पर्दे का है ख्याल तो पर्दा न कीजिए। ये शेर जिगर मुरादाबादी का है। शायर इस शेर में मजाज के पर्दे में हकीकत को रूबरू कर रहा है। सीधे तौर पर तो कहा यह जा रहा है कि निगाहें दीदार की चाह रखती हैं। वो लाख पर्दे में होने के बावजूद महबूब के हुस्न की कुछ न कुछ झलक पा ही लेती हैं। इसलिए हुस्न को ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए कि इसके पर्दा कर लेने से वो पूरी तरह अपने हुस्न को पर्दे के हवाले कर पाता है। देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। अगर इस शेर को वसी तनाजुर में देखें तब ये लाख पर्दे के बावजूद मालिक हकीकी का हर शय में नजर आना भी जाहिर करता है, मगर शर्त है चश्मे शौक का होना। आइए बात करते हैं शख्सियत की। फरीदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली शायरा व अदीबा कृष्णा शर्मा दामिनी उर्दू की एक मकबूल शख्सियत हैं। उर्दू ज़बान व अदब से वो बेपनाह मोहब्बत रखती हैं। उर्दू शख्सियतों से मुलाकात के सेगमेंट में आज हम इन्हीं से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। वैसे तो कृष्णा शर्मा दामिनी बुनियादी तौर पर हिंदी की लेक्चरर हैं, लेकिन उनकी असल शनाख्त एक शायरा के तौर पर होती है। उर्दू ज़बान व अदब से मुताल्लिक़ तक़रीबात, ख़ास तौर से मुशायरों में वो अक्सर अपने फ़न का मुज़ाहरा करती हैं। उर्दू सामीन से खूब दाद हासिल करती हैं। उर्दू ज़बान की मिठास और इसके लफ्ज़ों का सुरीलापन हर उस शख्स को अपनी तरफ खींच लेता है जो अदब या फ़नून लतीफ़ा में ज़रा सी भी दिलचस्पी रखता है। नज़ीर अकबर आबादी हूँ या मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब हूँ या डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ये सब फ़ारसी ज़ुबान से आशना और इसके माहिर थे। लेकिन सभी ने अपने इजहार का वसीला उर्दू ज़बान को बनाया। दूसरी तरफ उर्दू ही वो ज़बान है जिसने इन शायरों को शोहरत दाम बख्शी और अदब की बुलंदियों तक पहुंचाया। आज भी उर्दू की दिलकशी हिंदुस्तान के हर बड़े छोटे अदब आशना को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। ऐसे ही अदीबों में एक हैं कृष्णा शर्मा दामिनी, जो बुनियादी तौर पर हिंदी की लेक्चरर हैं लेकिन उर्दू ज़ुबान में गहरी दिलचस्पी रखती है। इनकी ज़्यादातर किताबें हिंदी में शाया हुई हैं, लेकिन वो उर्दू में भी खूब लिखती पढ़ती हैं। यहाँ तक कि इसमें शेर भी कहती हैं। वो कहती हैं, इश्क मफ़हूम कर लिया मैंने, दिल को मग़मूम कर लिया मैंने, तेरे किरदार की जो बात चली, खुद को मासूम कर लिया मैंने। वक्त जो तेरे साथ गुजरा था
वक्त जो तेरे साथ गुजरा था सारा मरकूम कर लिया मैंने। कृष्णा शर्मा दामनी की पैदाइश अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के एक मुहज़्ज़ब ख़ानदान में हुई। कृष्णा शर्मा की अब मुस्तकिल रिहाइश कौमी राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में है। कृष्णा को तालीम उनके वालिदैन की अनथक कोशिशों के बदौलत मिल पाई। वालिदैन ने दामनी साहिबा की जिंदगी को संवारने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। उर्दू जबान में कृष्णा की दिलचस्पी की वजह उर्दू की खूबसूरती और उर्दू की चाशनी है। उर्दू जबान के मीठे लफ्ज शुरू से ही उन्हें अपनी तरफ खींचते थे। उर्दू अदब में दिलचस्पी से अगर ताल्लुक़ रखती हूँ तो जब मैं पढ़ाती थी हिंदी में, जब अपने लेक्चर लेती हूँ 12th क्लास में जाती हूँ, अक्सर मैं 16 साल से कार्यरत हूँ लेक्चरर की पोस्ट पे। मैंने बच्चे 12+1+2 जब पढ़ाने जाते हैं तो उसमें अच्छा साहित्य है, अच्छा लिटरेचर है। कृष्णा शर्मा दामनी को घर में उर्दू का माहौल नहीं मिला, फिर भी इस जबान को सीखने का शौक उन्हें शुरू से रहा। जब फिराक गोरखपुरी को पढ़ाती हूँ या शेरी मजमुआ जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें कभी कभी जो उर्दू के जो अल्फाज आते थे तो उसमें बड़ी दिक्कत सी मुझे महसूस होती थी। जो लफ्ज़ आते थे, अब तो हम जब कहते हैं जिसको उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, तो वो जो तलफ़ुज़ की जो बात आती थी उसमें हम बड़े नाआशना थे उस वक्त में। तो ये पता नहीं चलता था कि उर्दू को लफ्ज़ों को पढ़ा कैसे जाए। तो इस चीज़ से अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। तो पढ़ाते पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये महसूस हुआ कि उर्दू सीखनी चाहिए। आखिरकार शादी के बाद उन्होंने उर्दू सीखने की ठान ली और उर्दू सीखने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहले तो मेरे घर के दरवाजे बंद ही हो गए थे कि मैं एक दिन क्लास से लेट हो गई और बंद कर दिया दरवाज़ा कि तो बात उसकी नहीं थी कि मैं भाषा सीख रही हूँ। बात ये थी कि इतना टाइम तुम बाहर दे रही हो, आ रही हो, जा रही हो, 11 बजे घर पहुँच रही हो। तब मैं, लेकिन मैं अब ये कहती हूँ कि मेरे फैमिली ने मुझे वैसे तो बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि जब भी मैंने एजुकेशन की बात आई उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। और जब उन्हें पता चला कि बाकायदा ये उर्दू सीख रही हैं और इनकी इतनी शिद्दत है, इतनी तलब है, ये नहीं रुक सकती। और आज के मायने, आज इस वक्त में मेरे रिसाले आते हैं, न्यूज़पेपर, अखबार आते हैं, वो सब उठा के रखते हैं। शायरी का शौक़ कृष्णा शर्मा को बचपन से था और वो पहले सिर्फ हिंदी में नज़्म कहा करती थी, लेकिन उर्दू सीखने के बाद वो इस ज़बान में भी अब बाकायदा शायरी करने लगी है। उर्दू शायरी का जो मसला शुरू हुआ मेरा 2016-17 से बाकायदा, जिसको कहते हैं कि बहर में लिखना, बहर से खारिज होना, ये बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए मैं जितनी ठोकरें मैंने खाई हैं मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। अब जितनी ज़िंदगी से मैंने सफ़र किया है, जिद्दोजहद की है, अपने आप से मैं लड़ी हूँ और आज भी मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। कृष्णा दामनी की पहले हिंदी में कई किताबें छप चुकी हैं, मगर अब उर्दू में भी इनकी किताबें आने लगी हैं। देखिए, मंजर-ए-आम पे तो मेरी उर्दू में 2 किताबें आई हैं, उससे पहले मेरी 4 किताबें हिंदी मीडियम में, हिंदी के उससे हवाले से आई हैं। गीत गंगोत्री, हाइकू, ताका की महक हिंदी मीडियम में। लेकिन मेरी उर्दू के हवाले से मेरी 2 किताबें हैं, जो 2 एडिशन है, उर्दू भी और हिंदी भी है। प्यासे लम्हे उर्दू में और शिद्दत इश्क। उर्दू अदब से मुतल्लिक सरगर्मियों में कृष्णा शर्मा दामनी खूब हिस्सा लेती हैं। उर्दू माहौल में रहना उन्हें अच्छा लगता है, जिससे उनकी तख्लीकी सलाहियतों को जिला मिलती है। अदब से इतनी बेपनाह मोहब्बत, क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाती, जब मैं हिंदी साहित्य, मैं हिंदी की विद्यार्थी रही शुरू से, अब तालिब इल्म हूँ, उर्दू से मुखातिब हूँ और उससे काफ़ी मुतासिर भी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जाकर मैं कहीं जाकर पूरी होने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी राहबर है हिंदी, मेरी रहनुमा है उर्दू, मैं इन्हीं के नक्शे पा पर यहाँ चल सकी हूँ अब तक। तेरी बेरुखी का मुझको, जो समाज में, मुआशरे में देखी जा सकती, तेरी बेरुखी का मुझको कोई रंजो गम नहीं है। मुझे गम यही है खुद को न बदल सकी हूँ अब तक। कृष्णा हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को एक बड़ी नियामत मानती है। उनके नज़दीक उर्दू ज़ुबान दरअसल हिंदुस्तानियत की ही अलामत है। मेरे अंदर कतई भी ये फ़र्क पैदा ही नहीं हुआ कि ज़बानों के हवाले से मेरी ये अपनी दोनों ज़बानें मुझे अपने यहाँ, मेरे अपने हिंदुस्तान में, मेरे अपने इदारों में, मेरे अपने स्कूलों में, मेरे अपने आसपास के लोगों ने ही सिखाई है।
मैं कहीं बाहर नहीं गई इसके लिए। लोग कहते हैं कि ख़त्म होती जा रही है उर्दू, हिंदी। अगर भाषा ख़त्म होती है तो हम ख़त्म होते हैं। उर्दू सीखने में कृष्णा को घर के लोगों से कोई खासी मदद तो नहीं मिली, लेकिन जितनी मिली उसको कृष्णा शर्मा दामनी गनीमत मानती हैं। अब उनके बच्चे भी उर्दू जबान में दिलचस्पी लेने लगे हैं। कृष्णा शर्मा की जिंदगी काफी मसरूफियात भरी है, लेकिन उर्दू अदब में दिलचस्पी उनके मसरूफियात के बीच कभी रोड़ा नहीं बनी। उर्दू जबान की मौजूदा सूरत हाल से कृष्णा दामनी साहिबा कतई मुतमय्यन नहीं है। वो चाहती हैं इस जुबान को मजीद तरक्की देने के लिए सब लोग मिलकर काम करें। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की कोशिशों को कृष्णा शर्मा काफी सराहती हैं। वो मानती हैं कि कौंसिल की बदौलत ही उन्हें उर्दू डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिला। NCPL का किरदार तो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। देखिए, मैं NCPL की तमाम टीम का मैं शुक्रगुज़ार करती हूँ और ख़ास तौर से डॉक्टर शेख अकील साहब का मैं शुक्रगुज़ार करती हूँ। उनका अखलाक ये बताता है कि उर्दू के हवाले से ही नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने हमेशा हम जैसों की बहुत हौसला अफजाई की है। मैं तो ख़्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी किताब का रस्म इजरा शिद्दत इश्क का इस तरीके से मजमूआ सबके सामने पूरे हिंदुस्तान में शाया होगा। और उन्होंने बाकायदा तरीके से बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से अपने दस्ते मुबारक से मेरा वो शिद्दत इश्क मजमूआ शाया किया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और वहाँ से मुझे बाइस फ़ख्र हूँ कि मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया और पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कृष्णा शर्मा दामनी अब उर्दू में आला तालीम हासिल करके एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब मुझे सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अव्वल अवार्ड मिला, अव्वल उर्दू अवार्ड मिला मुझे अव्वल आने पर। तो मुझे बेपनाह खुशी हुई, उससे मुझे इतनी हौसला अफजाई कि मुझे अब तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और मेरी कोशिश रहेगी, मेरा जुनून रहेगा, मेरी शिद्दत रहेगी और मैं उर्दू में PhD भी करके दिखाऊंगी। कृष्णा शर्मा दामनी की शायरी सुनने के बाद इस बात का अंदाजा होता है कि उनकी शायरी में हमारी मुश्तरका तहजीब का रंग झलक रहा है। नहीं ठीक होगा किसी चारागर से, नहीं ठीक होगा किसी चारागर से, यकीनन मुझे गम जो तूने दिया है। नहीं ठीक होगा किसी चारागर से, यकीनन मुझे गम जो तूने दिया है। शेर देखेगी, यूँ लिपट कर रोए हैं हम ख्वाहिशों की आग से, यूँ लिपट कर रोए हैं हम ख्वाहिशों की आग से। रूह कब की जल चुकी और जिस्म बाकी रह गया, रूह कब की जल चुकी और जिस्म बाकी रह गया। प्यार में हम दूरियों का तुमसे क्या करते गिला, प्यार में हम दूरियों का तुमसे क्या करते गिला, बस तुम्हारा नाम होठों पर रखा और सो गए। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर की। कौमी उर्दू काउंसिल मुल्क भर में उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज और इरशाद का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है, जो कि वजारत तालीम के तहत काम कर रहा है। मुल्क भर में कायम कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कंप्यूटर सेंटर माशी एतबार से कमज़ोर तलबा को रोज़गार फराहम कराने का बड़ा ज़रिया बन रहे हैं। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की ये सेंटर नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की असरी तालीम से आरास्ता करने और उर्दू ज़बान से जोड़ने में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। इन सेंटर से कंप्यूटर का कोर्स करने वाले तलबा को न सिर्फ रोज़गार मिला है, बल्कि ये तलबा आला तालीम हासिल करके अपनी सलाहियत में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। दौरे हाजिर में कंप्यूटर की तालीम हासिल करना वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है और इस ज़रूरत को मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू कौंसिल के कंप्यूटर मराकज़ बखूबी पूरा कर रहे हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कोर्सेज़ की मानवियत और इफ़ादियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में कौंसिल के ज़रिए ज़बान की तदरीस के साथ कंप्यूटर तालीम का जो सिलसिला शुरू किया गया है, उससे उर्दू तलबा में नई उम्मीद पैदा हुई है। कौमी उर्दू कौंसिल का ऐसा ही एक कंप्यूटर सेंटर कश्मीर के ज़िला गांदरबल के कंगन इलाके में हेल्पेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत गुज़िश्ता कई सालों से कामयाबी के साथ चल रहा है और इस सेंटर से तलबा कंप्यूटर की असरी तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर NCPL का, जिनकी वसादत से ये ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे चल रहा है। तो 2011 जुलाई से हमारा सेंटर रन हो रहा है।
तो अभी तक देखा जाए तो 1400-1500 स्टूडेंट तक की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। और जो कोर्स है, मेन चीज़ कोर्स का है, जो अभी मार्केट में जो स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है इससे, क्योंकि इस कोर्स में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी मिलेगा, इसमें आपको वेब डिज़ाइनिंग भी मिलेगा, और इसमें पूरा ऑफिस का पैकेज है जो अभी स्टूडेंट्स की नीड है, जो मार्केट में नीड है। हेल्पेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले कौमी कौंसिल के सेंटर में तलबा को उर्दू पढ़ाने और कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में देने के साथ उनकी हमजहत नश्व नुमा पर भी फोकस किया जाता है, ताकि ये तलबा अमली मैदान में दूसरी ज़बान के तलबा से किसी भी मामले में कमज़ोर न रहें। असातिज़ा के मुताबिक कौमी उर्दू कौंसिल के इस 1 साला कंप्यूटर कोर्स को आसान उर्दू ज़बान में बाज़ार की ज़रूरियात के हिसाब से तैयार किया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सिलेबस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को एनसीपीओ की तरफ से, तो एक पर्टिकुलर शीट है, तो पूरा एक पैकेज है उसमें कंप्लीट कि कैसे स्टार्ट करते हैं बेसिक से, उसके बाद इंटरनेट तक पहुँचते हैं, उसके बाद टैली तक पहुँचते हैं, तो ये सारा आता है एक सेमेस्टर में। तो ये फिर बच्चों को अगर ये प्रॉपर नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद ये जाते हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में सीखते हैं इन पेज के बाद ये सीखते हैं कोरल ड्रा के बाद फोटोशॉप, और लास्ट में सी लैंग्वेज हम इनको प्रोवाइड ये सिखाते हैं। हम यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर के साथ साथ उर्दू का भी कोर्स करवाते हैं। उर्दू कोर्स ख़त्म होने के बाद बच्चों को डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज की सर्टिफिकेट भी मिलती है, जो इनको आगे जाके फ्यूचर में ज़रूरत लगती है जॉब्स के लिए। तलबा खुश हैं कि कौमी उर्दू कौंसिल का इतनी उम्दगी से डिज़ाइन किया हुआ ये कंप्यूटर कोर्स उनको इतनी कम फीस में करने को मिल रहा है। इब्तिदा से ही इस सेंटर ने उर्दू तलबा के बीच अपनी इफादियत को साबित किया है, और आज ये नतीजा है कि यहाँ तलबा की इस कदर भीड़ होती है कि उन्हें दाखिला लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। शौक था कि मैं ऐसा कोर्स करूँ, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो उतनी नहीं थी कि मैं अप्लाई कर सकता प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि वहाँ पे जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है यहाँ से। इसलिए फिर मैंने ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे अपना कोर्स स्टार्ट किया। हम शुक्रगुजार हैं NCPUL का कि हमें सिर्फ 250 यानी 250 माहाना फ़ीस अदा करनी पड़ती है, और साथ ही साथ में सर हमें फ्री स्टडी मटेरियल और जो मंथली मैगजीन्स होती है वो भी इन्हीं की तरफ से हमें फराहम करते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिनकी तरफ से हेल्पेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे कायम है। हम यहाँ पे 1 साल का कोर्स काबा MDTP कर रहे हैं, जो बिल्कुल मुफ्त के बराबर है। मैं यहाँ काबा MDTP के कोर्स के लिए आई हूँ। मैंने अपने भाई को देखा, उसने भी लास्ट सेशन में यहीं से एडमिशन ली थी, तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने भी यहीं से एडमिशन ली। मैंने यहाँ पे काबा MDTP कोर्स में दाखिला लिया है, और इस कोर्स में हमें 2 सेमेस्टर हैं। पहले सेमेस्टर में हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ साथ टैली, HTML और इंटरनेट की तालीम हासिल कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने बच्चों को उर्दू ज़रिए तालीम से हम आहंग करके कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इस कंप्यूटर सेंटर से तालीम दी है, उनके सामने आज एक रोशन मुस्तक़बिल है। अब तक इस सेंटर से 1500 से ज़्यादा तलबा उर्दू के साथ कंप्यूटर की तालीम हासिल करके न सिर्फ खुद कफ़ील हैं, बल्कि अपने साथ अपने घर वालों की भी किफ़ालत कर रहे हैं।